ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سو جاتی ہے وہ کبھی موٹی نہیں ہوتی۔ انسان کو انسان سے دور کر دینے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کے زیادہ پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی ایک واضح نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ روزانہ کم سے کم 3 عدد انجیر کھانے سے دبلے افراد آسانی سے موٹے ہو سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے آپ کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل ہاتھوں کو لگانے سے ہاتھ نرم اور ملائم رہیں گے۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہیں؟ روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھا کریں۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا چبا کر کھائیں۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کولڈ ڈرنک زیادہ استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آڑو پیاس کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جگر کو قوت دیتا ہے اور آپ کے معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تذابیت ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو بدہضمی نہیں ہوتی۔ نہار منہ روزانہ کھجور کھانے والے بندے کا جسم میں بے بنا طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد لے کر ایک قطرہ آنکھ میں ڈال لو، انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہے تو سبز چائے پئیں۔ جب آپ پریشان ہوں اور جسم تھکا تھکا ہو تو ادرک کی چائے پیو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے 2 دانے چلغوزے کے رات کو چبا لیا کریں۔ اگر کان بہتا ہے تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند قطرے ڈالو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیے کا سالن کھا لو، ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جریاں دور ہو جائیں گی۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتا دوں؟ تو سن لو کہ تمہاری دوائی استغفار ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بیماری کا مسئلہ درپیش ہے تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ گرم پانی میں پھٹکڑی یا پتھری نمک ڈال کر پاؤں کے بیٹھ جائیں۔ پھٹکڑی اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جائے گی۔ معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں۔ پرایا کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ جو عورت الٹا ہو کر سوتی ہے اس کی چھاتی کا شیپ خراب ہو جاتا ہے۔ بس میں سفر کرنے والے چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے اس کے قریب کبھی بیماری اور بڑھاپا نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ سونف والی چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ آپ کے پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ انگور بڑھاپے میں توانائی اور تندرستی فراہم کرتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوڑ، ٹانگیں، پٹھے اور جسم مضبوط رکھنا ہے تو انگور لازمی کھائیں۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے۔
पुदीने की डंडियों को चबाया करें, जिससे जवानी हमेशा बरकरार रहती है। पुरानी औरतें फ्रेश रहने के लिए उम्र रात को सोते वक्त एक बड़ा चम्मच सौंफ का और 11 बादाम खाती हैं, और ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। काली मिर्च का पाउडर रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी आंखें ठीक रहती हैं। काली मिर्च का पाउडर रोजाना इस्तेमाल करने से इंसान का गला ठीक रहता है। अगर किसी का हाजमा खराब हो तो उसे पेट में दर्द भी रहता हो तो रोजाना सौंफ की एक चुटकी खाया करें। पेट में दर्द है और खाना हजम ना होता हो तो खाने के बाद एक चुटकी सौंफ की खा लें। औरतें अगर अपना वजन कम और जिल्द को हमेशा जवान और खूबसूरत रखना चाहती हैं तो रोजाना आड़ू खाएं। इसके इस्तेमाल से वजन में कमी होती है और जिल्द हमेशा खूबसूरत रहेगी। अगर चेहरा बूढ़ा नजर आने लगे तो खजूर, दूध और अंजीर को अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल कर लो। इससे चेहरा 19 साल जैसा नजर आएगा। खाली पेट सोने से गुरेज किया करें, क्योंकि खाली पेट सोना उम्र में कमी लाता है। खुराक को अच्छे तरीके से चुबाकर खाने से पेट नहीं फूलता। जो अफराद नरम दिल होते हैं वो ज्यादा हंसते हैं और कभी जल्दी बूढ़े नहीं होते। कम वजन और पेट नॉर्मल करने के लिए नींबू का अर्क हस्बे जरूरत 60 ग्राम कलवंजी के साथ इस्तेमाल करें। इसे किसी प्याली में डालकर इतना रखें कि कलवंजी ढक जाए। खुश्क होने के बाद इसे पाउडर की शक्ल में तैयार कर लें। इस सफूफ को रोजाना गर्म पानी के साथ 2 या 3 चुटकियां इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक हफ्ते में 10 किलो वजन तक कम हो जाएगा। मुश्किलात और परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं। पुदीने की एक टहनी को 1 लीटर पानी में उबालकर दिन में 3 बार पीने से मैदे की तेजाबियत दूर हो जाती है। सौंफ कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की खसूसियत रखता है। रोजाना खीरे का इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है। जो लोग नींद पूरी नहीं करते वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। चाय में पानी ज्यादा पकाने से चाय बदमजा हो जाती है। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं। उनकी मिट्टी खाने की आदत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। दुबले पतले अफराद काले चनों को भून कर खाया करें, इससे वो मोटे हो जाएंगे। अंडों को उबालने से पहले अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेंगे तो अंडों का छिलका फटेगा नहीं। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले वॉशरूम से फारग हो लें। दही मैदे की तलबियत को खत्म करके आपके वजन को कम करता है। आलू कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बाया और बादी हैं। घर में सफेद रंग का पेंट करवाएं, आपके घर में मच्छर नहीं आएगा। पानी में नमक डालकर फर्श को धो लें तो कीड़े मकोड़े और मक्खियों से आपको निजात मिल जाएगी। पट्ठों में दर्द खचाव रहता हो दोपहर के वक्त काली मिर्च खाने से आपको अफाका होगा। खाने के बाद अगर आप 1 सेब खा लिया करें तो इससे आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी। जैतून के बेशुमार फायदे हैं। रोगन जैतून खाओ, इसको लगाओ, इसलिए कि ये एक मुबारक दरख्त से हासिल किया गया है। ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज से शिफा देता है। इसे जोड़ों के दर्द में भी इंतहाई मुफीद है। चेहरा का रूखापन, दाने, स्याहियां, दाग धब्बे खत्म करता है। नजर की कमजोरी के लिए ये इंतहाई मुफीद है। अगर रोजी अकल से हासिल की जाती तो दुनिया के तमाम बेवकूफ भूखे मर जाते। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारियां दूर हो जाती हैं। चावल ज्यादा खाने से आपके गुर्दे में पथरी हो सकती है। जिस शख्स की नजर कमजोर हो वो 7 बादाम की गिरियां, आधा चम्मच सौंफ और मिश्री के साथ इसको पीसकर रोजाना इस्तेमाल करे। ख्याल रहे कि बादाम कड़वे ना हो, क्योंकि कड़वे बादाम खाने से आपकी नजर मजीद कमजोर हो जाएगी। नाराजगी भी एक अजीब सा रिश्ता है। झाड़ू देने में घर में नहुसत और रिस्क में तंगी आती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है तो केला खाएं। जो शख्स सुबह नहार मुंह केला खाता है उसका वजन बढ़ जाता है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से आपकी जवानी बरकरार रहती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिज्क तकसीम होता है और उठने वाले का रिज्क बढ़ जाता है। चाहे आप अपनी जिंदगी में खुश ना हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी जिंदगी के लिए तरसते हैं। सोते वक्त नींबू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। अजवाइन पेट के अमराज का शाफी इलाज है, बदन में चुस्ती पैदा करती है। बवासीर के लिए ये इंतहाई मुफीद है। आंखों पर अजवा खजूर का छिलका मसल लेने से आंखों की बनाई बढ़ जाती है। अगर सुनाई देने में रुकावट हो तो कानों को अच्छी तरह साफ करके नीम गरम नारियल के तेल का 1 कतरा कानों में डाल लें, इंशाल्लाह शफा होगी।
टिश्यू पेपर में ज्वाइन लपेट कर सूंघ लें, छींकें आना बंद हो जाएंगी। मिट्टी की कटोरी में बादाम घीस कर पिंपल पर लगाने से पिंपल के दाग खत्म हो जाते हैं। अगर जिस्म में जलन है तो मेहंदी के पत्तों को पीस कर लगाने से जिस्म की जलन खत्म हो जाती है। हाफजा और नजर की कमजोरी का खात्मा अगर करना है तो रात को 7 बादाम पानी में भिगो दें और सुबह छिलके समेत खा लें। अगर आपको सोने में मुश्किल पेश आ रही है तो 1 मिनट के लिए तेजी से अपनी आंखों को झपके, आपको जल्द नींद आ जाएगी। अगर आपको लेटे हुए चक्कर आते हैं तो अपना पाँव ठंडी जमीन पर रखें। जुओं को खत्म करना है तो अदरक को पीसकर इसका रस सर में डाल लें। सोते वक्त पेट के नीचे एक छोटा तकिया रखने से सारा दिन कमर का दर्द नहीं होगा। प्याज का रस पियो, छाती का बगलम और रेशा खत्म हो जाएगी। दिन में 2 बार सब्ज चाय पीने से बदन के फाजिल पानी को खारिज करने में मदद मिलती है। बच्चों को देसी घी की मालिश करने से बच्चों के पट्टे इंतहाई मजबूत हो जाते हैं और वो बेहतरीन नशोनुमात के साथ बड़े होते हैं। नान खाने से आंतें खुश्क हो जाती हैं और आपका मैदा सख्त हो जाता है। जिसको भूलने की बीमारी हो वो दाल चीनी चबाया करे और इस मर्ज से उसको निजात मिल जाएगी। अगर आपके गले में दर्द हो तो शक्कर और हल्दी दूध में मिलाकर पिए। कमर का दर्द दूर करना है तो रोटी को चबाकर खाएं। तरबूजा खाने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होते। तरबूजे के बीज खाने से कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होता। ज़्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल करने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है। भूलने का मसला है या यादाश्त की कमजोरी तो दूध में बादाम और खजूर डालकर खाया करें। आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा। हमेशा जवानी चाहते हो तो रोजाना इसबगोल के छिलके को दूध में मिलाकर पी लीजिए। अगर आप सेहत को हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं तो चावलों के बाद दूध आपने हरगज नहीं पीना। ज्यादा प्यास लगने की सूरत में पानी को आहिस्ता आहिस्ता घूंट घूंट करके पिएं। एकदम से ज्यादा पानी बिल्कुल ना पिएं क्योंकि इससे आपको दमा हो सकता है या सांस की नाली में पानी जा सकता है। रोजाना दिन के वक्त पुदीने की चटनी बनाकर खाने से मौसम की तब्दीली का आप पर कोई असर नहीं होता। अगर सुबह के वक्त अंगूर खाने चाहिए तो जिल्द 80 साल तक कभी नहीं लटकेगी और हमेशा आप जवान और जिल्द टाइट रहेगी। अगर 50 साल की उम्र में भी आप 20 साल के नजर आना चाहते हैं तो मुंह धोते वक्त खीरे का रस अपने चेहरे पर लगा लें। गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी लें। चेहरे की तमाम जरियां, स्याहियां और धब्बे खत्म हो जाएंगे और चेहरा साफ और जवान नजर आने लगेगा। अगर काम के बाद थकावट महसूस होती है तो पुदीने के चंद पत्ते चुबाएं, इंशाल्लाह थकावट दूर हो जाएगी। जब फोन की बैटरी 10% से कम हो तो किसी भी कॉल का जवाब ना दें क्योंकि ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से आपके बाल तेजी से गिरने लगते हैं। नाश्ते में जैतून का तेल इस्तेमाल कर लेने से गैस की बू नहीं आती। शाम को चावल ज्यादा इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी बढ़ जाती है। हवा या गैस की शिकायत हो तो पैदल चलने में कमी हो जाती है। औरतें बदन पर मोटे बालों से परेशान हैं। गर्म चीजें कम खाएं। जौ का दलिया बनाकर खा लें, इससे दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। मैदे की तमाम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो खाने के दौरान पानी बिल्कुल ना पिएं। जुकाम की वजह से नाक बंद है तो अजवाइन को नाक के करीब लेकर सूंघ लें, इंशाल्लाह नाक खुल जाएगी। घर को बर्बाद करने वाले रोजमर्रा के काम। रात को घर में सफाई की आदत, रात को घर में झगड़ा करने की आदत, टूटी हुई कंघी से बाल संवारने की आदत। जब नमाज मुकम्मल कर लें दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेर लें, इससे चेहरे पर नूर आ जाता है।